or the class that could be defined by a few of the factors, sorry, few of the statements. I had my anniversary. This could explain why I was not here. I wanted to give time to my family. This could clearly explain why I was unable to make up to the session. These two things are having a very something in common variance, which can explain the total variance, and this could clearly explain why I was not able to make up to the session. Now, third argument that I am giving that why I was not here, I was not in mood. Can this explain why I was clear? Can this explain clearly that why I was not here in this session? It's a error variance. It's a error variance. Okay, it comes out of nowhere and it has nothing to do with why I was not here. The other two reasons that I gave, that might be a situation that might lead to this thing that I was not here. While I have given these two statements that I had my anniversary, I had to give time to my family. These could explain the total variance. But apart from this, there might be some hidden or latent variables which could affect or which could explain why I was not here in the session yesterday. This could be, I said that I had to give time to my family. Now I had to give time to my family. When could be this could be explained, and that's why I was not here. But this could also be explained that by this that I had to give time to my family because my family was asking for it, a latent variable. So if we have the case like this, now the total variance cannot be explained by the common variance. There is also unique variance here that my family was asking for it, which I haven't listed as a reason. But this could be a latent variable, and this could explain altogether. Now I have to give time to my family, and my family was asking for it. These two could now explain the variance where there is a common variance that I have to give time to my family, and also there is a unique variance because I have to give time to my family. This could not explain the 100% of the variance. Some of them is explained by the unique variance, which is the latent variance. And in that case, now coming to the case when the entire total variance could be explained by your common variance, then you go for principal component analysis. And when your total variance is explained by, cannot be completely explained by a common variance, there is some also unique variance there, there are some hidden latent variables, then you will apply this common factor analysis. That's how these two techniques are different. However, both these two techniques are the dimension reduction techniques, while principal component analysis focuses on creating, you can say, linear relationship. Okay, it defines, let's say, if you say that there is a factor or there is a, you can say, a construct, how all the other variables together in a linear position when they are into you can say they are having a linear association, linear
having that linear association, how they can, you can say, affect the main construct, or how they altogether make the construct. And this principal component analysis assumes that the common variances makes up the total variance. There is no concept of unique variance. However, the factor analysis or common factor analysis assumes that total variance can be partitioned into common and unique variances. This unobserved or latent variable that makes up the common variance is called a factor, and hence there is the name of this analysis is factor analysis. Now, the other main difference between the principal component analysis and the factor analysis is the goal is based on the goal of our analysis. So, if your goal is to simply reduce your variable down into a means all our dimension reduction techniques. So, if your goal is to simply reduce your variable list into a linear combination of small components, then this is the process that you apply is principal component analysis. However, if you believe that there is some latent or hidden construct that defines the interrelationship among the items, then factor analysis may be more appropriate test. Now let's see, in the previous session, we had taken this SPSS anxiety questionnaire and 8 items we had taken, and we wanted to know that whether they all could lead to the construct SPSS anxiety or not. So when we go for this exploratory factor analysis or dimension reduction or whatever you say, there are 2 steps. One step is factor extraction, and another one is factor rotation. So previously we had done factor extraction, and now we will be doing the further factor rotation. So just I am going in a fast way, I am just going back what we did previously. So I'm sharing my screen. If you could remember, we had something like this, the table, the SAP8.SAB, and analyze, go to factor analysis. I had taken all of these. I had selected on extraction, have taken the correlation matrix. From here, the method was principal component analysis. I wanted to have, I wanted to extract only those items which have eigenvalues over 1, because eigenvalues over 1 are considered as a good fit. Then maximum iterations for conversion, I had kept it to 100, the maximum, and done. In that, I have talked about all these things, and yes, I have also in the previous one, I had just given the option of script plot. Yes, script plot. Continue. Okay. Now, based on script plot, we could see that a sudden influx happens after 2. Okay. And from here also we can see that after 2, almost 2 components, almost most of the eigenvalues, they are decreasing. So we have decided to come up with 2 components only. Okay. So, sorry, IBM SPS. So here we had taken all 8 number
8 factors. And when we see the scree plot, now here you see the initial value and the extraction value is the same because we have 8 items and we have taken in 8 components. So it will come to be like that. But here scree plot somewhere tells us that there is a sudden influx after 2. So we will be going for extracting 2 components. So let's go for extraction of only 2 components. Here just simply the same thing. Keep 2 components, continue. Okay. So here you can see that now since we have only extracted 2 components, the extraction of value has changed, and the sum of these values, the communality's value, is equal to the sum of the initial all these eigenvalues. So it shows that the total variance is explained by the common variance, and its commonalities means h square is equal to your total variance. Now we have extracted 2 common components. Now further we are going to simply you can say rotate these components, because the second step after extraction is rotation. So in the factor analysis, now I'll take the rotations. Now these rotations are of 2 types. We have the orthogonal rotations and we have the unique rotations, oblique rotations. The aim of rotation is orthogonal rotation, and next one is oblique rotation. Oblique. Yeah, oblique rotation. So the aim of this rotation actually is to just whatever you have extracted, whatever the values you have extracted, this rotation makes it into a more sensible, or you can say a very easy kind of interpretation could be drawn through rotations. So this is the actually the motive of doing the rotations. So, and if I talk of means why we are okay extraction, we have cut down the number of components into 2. Okay, then why we rotate it? Further step is the rotation, because this rotation will improve the interpretation of the factors that we have taken. And this rotation actually maximizes the loading of each variable on one of the extracted factors. And also at the same time, it minimizes the loading on all other factors. So this rotation works through changing the absolute values of the variable while keeping their differential values constant. So just let's see how much rotation, what kind of rotation we are going to have. So now we have taken the Varimax rotation. Okay, Qualtimax is a kind of oblique rotation. So the very popular orthogonal rotation is Varimax. Display rotated solution. Continue. Okay. Now you see here we are getting actually, yeah, we have the component matrix and the rotated component matrix in this case. So you have to check that whether the component matrix after rotation, when you are getting the rotated component matrix,
are you getting some better scores or not? If you are not getting better this scores, then it's of no use. Of means rotating these will be of no use. So you have to check. Now let's see the case of first item. There is no much change except the minus sign has been removed. Then in the second, you will find that there is somewhat change. In the third standard deviation excite me, you can find that something is changed. I dream that Pearson is attacking me with correlation coefficient. A little bit of change has happened. You can see that not much change has happened, but yes, here now you have to see that which of the items have loaded into which component. So you have to focus on two things, and these two things are that you have to see that only those values which are over 0.5, only they are to be considered while going for this rotated component matrix table. So now if you observe, can you tell me which of them have converged to which of the factors, which of the component? So if you see item number 1, 0.66, item number 4, 0.71, item number 5, item number 6, item number 7, item number 8, all these have converged onto which component? See, first they have converged onto which component? First one, fourth one, then fifth, sixth, yes, fourth, then fifth, sixth, seventh, and eighth. All have converged at one point. Means they have loaded into one component, and that is the first component. Isn't it? See, are you people there in the class, in the session? Yes, sir. So can you please tell me that which of the item has loaded into which of the component? सर इसमें इतना समझ में आया कि जिनकी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है 0.05 नहीं मैम, 0.5 0.5 से ज्यादा है सर, उनको आपने सिलेक्ट किया जिसमें सिर्फ आप उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं, हाँ, बाकी को डिस्कार्ड कर देते हैं। हाँ जी, तो सर इसमें आपका फर्स्ट हो गया 0.66, 0.71, 0.64, 0.60, 0.68, 0.63। ठीक है, तो आइटम नंबर 1, हाँ जी, ये कंपोनेंट 1 के इतने नंबर सिलेक्ट कर लिए फैक्टर। 0.71, सॉरी, आइटम नंबर 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8। 6, 7, 8, ये तो हो गए कंपोनेंट 1 हाँ में जी, लोड हो गए। कंपोनेंट 2 में क्या क्या लोड हो रहा है? सेकेंड, सेकेंड, थर्ड एंड एट्थ। नहीं, एट्थ भी नहीं होगा। ओनली सेकेंड एंड थर्ड। हाँ जी,
The second statement is, my friend will think I am stupid for not being able to cope with SPSS. And the third one is, standard deviations excite me. So first component is our first variable. First construct. And what was our first construct? What was our first construct? हम किस कॉन्स्ट्रक्ट को लेकर के चल रहे थे पहले? एसपीएस एंजाइटी को ना? पहले हम एसपीएस एंजाइटी को ही तो लेकर के चल रहे थे ना? Right. Okay. So all these six are able to define our SPSS anxiety or not, because they have loaded into the first component. सर प्लीज रिपीट वंस अगेन, एक्चुअली पावर कट हो गया था. Ma'am, these six are loading into component number 1. ये तो क्लियर है ना? हाँ जी सर. And second and third have loaded into component number 2. Yes sir. Now what was our component number 1? That's what exactly I am asking. Status. SPSS anxiety. SPSS एंजाइटी ही तो हमारा कंपोनेंट 1 था. यस सर, यस सर. जब हमने फैक्टर एक्सट्रैक्शन किया तो उसने हमको यही बताया कि सर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि ये 6 तो आपके फर्स्ट कंपोनेंट को डिफाइन कर रहे हैं और सेकंड और थर्ड जो है सेकंड कंपोनेंट को डिफाइन कर रहे हैं. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि क्या सेकंड और थर्ड लोड तो हो रहे हैं सेकंड कंपोनेंट में, लेकिन क्या वो कंपोनेंट इन दोनों आइटम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहीं से? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है, माय फ्रेंड्स विल थिंक आई एम स्टूपिड फॉर नॉट बीइंग एबल टू कोप विद एसपीएसएस, और थर्ड है स्टैंडर्ड्स डेविएशन एक्साइट मी. नहीं सर, ये तो नहीं सर, ये तो रिलेट नहीं होता. आपस में कहीं रिलेट नहीं हो रहे हैं. राइट. तो हम क्या बोलेंगे कि सिर्फ ये जो हमारे 6 थे, 1 item, 4 item, 5th item, 6th item, 7th and 8th, they are able to explain the 100% variance. Not exactly 100% variance, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, but anything above 70 to 80% variance, if that could be explained, that's fine. Right? So out of 8 items, we were able to identify these 6 items which could explain our construct. Am I clear on this? Yes, sir. Yes. Basically, that is anxiety related to SPSS, first component. Yeah, these 6 are able to explain the anxiety related to SPSS. Right? Yes, sir. And they could explain how much variance. ये भी देख लेते हैं जरा. टोटल वेरिएंस जब हमने 2 फैक्टर लिया तो कितना एक्सप्लेन हो रहा है? 51.5%. ये देख रहे हैं आप टेबल? Are you able to see this table? Yes, sir. Sir, but why is it in the second? Because it is cumulative. Yeah, it's cumulative ना. पहले कंस्ट्रक्ट पहले ने 34.7% किया, दूसरे ने 13.3% किया, ओवरऑल 51.5% वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा है टोटल.
ठीक है। Yes, sir. If we take अब इस it as two 51 factors. अब ये टोटल तो 51.5% था। इस 51.5% में भी जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था वो था मैक्सिमम, तो उसी ने एक्सप्लेन कर दिया 34.7%। जो हमारा पहला कंपोनेंट था इसमें भी 51.5% में भी सबसे ज्यादा एक्सप्लेन तो वही कर रहा है, 34.7% के आसपास तो वही एक्सप्लेन कर दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. सर 38.2 कंपोनेंट 1 का है। 38.2 कंपोनेंट 1 का है। सर जो ये वेरिएंस आपने परसेंटेज ऑफ हम वेरिएंस नीचे हम रोटेशन के बाद देख रहे हैं, देखेंगे ना इसको। हाँ जी, तो कितना हो रहा है टोटल? 51.5% आ रहा है। यस सर। एक्सट्रैक्शन, सिर्फ हम एक्सट्रैक्शन के बाद ही नहीं देख रहे हैं, हम अब रोटेशन के बाद देख रहे हैं ना। तो रोटेशन के बाद चाहे आप इसको ले ले, वैसे तो इसी को लीजिए। रोटेशन के बाद कितना हुआ? 51 पॉइंट। इसीलिए तो हमने कहा था ना कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है रोटेशन करने के बाद भी। यहां से भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है वेरिएंस एक्सप्लेन करने में। सर अच्छा, बिफोर रोटेशन 38.2 था, आफ्टर रोटेशन 34.7 हो गया। और यहां अगर आप टेबल से भी देखें तो बहुत ज्यादा फर्क आया नहीं है। यस ये आप सर। देखें रोटेशन के बाद बहुत ज्यादा आया नहीं। तो मतलब वैसे तो रोटेशन हम करते ही हैं कि और बेटर हमें रिजल्ट्स मिल जाए। तो अच्छा, अगर हम इसको ही लें सिर्फ 34.7% भी, तो टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन कितना हो रहा था? जब हम देखिए, जब हम पूरा 8 कंपोनेंट लेकर के चले थे तब तो 100% वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा था और होगा भी। बट हमने कहा कि नहीं, जब हमने फर्दर स्क्री प्लॉट और आइगन वैल्यूज देखा हमने, तो हमें पता चला कि नहीं, 2 कंपोनेंट के बाद बाकी सब की आइगन वैल्यूज 1 से कम है, तो वो हमें डिस्कार्ड करनी है क्योंकि वो गुड फिट है नहीं। तो 2 ही कंपोनेंट लेके चलेंगे। अब जब हम 2 कंपोनेंट लेके चले तो ये 2 कंपोनेंट पूरा वेरिएंस, कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं 51.5%। उसमें भी जब हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो 34.7% कर पा रहा है, तो मैक्सिमम तो वही एक्सप्लेन कर दे रहा है। और यहां से भी क्लियर है कि ठीक है, ये 8 में से हमारे 6 आइटम्स तो एक कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर ही रहे हैं, एसपीएसएस एंजाइटी को। प्रॉब्लम तब हो जाती कि अगर ये 4 मिल करके कहीं कंपोनेंट 2 को मेजर करना शुरू कर देते, तब हमें पता करना पड़ता कि ये कंपोनेंट 2 भी क्या है, कौन सा वेरिएबल है। और अगर ये दोनों, इनमें भी, इनसे भी हम कुछ रिलेशन निकाल पाते, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्साइट मी और माय फ्रेंड्स विल थिंक आई एम स्टूपिड फॉर नॉट बीइंग एबल टू कोप विद एसपीएसएस। ये दोनों कहीं अगर रिलेटेड होते, कॉमनैलिटी आपस में शेयर करते, कॉमन वेरिएंस एक्सप्लेन कर पाते, तब हमें पता करना पड़ता कि सेकंड कंपोनेंट क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। हम सीधे कहेंगे कि हमारा एक कंपोनेंट एसपीएस एंजाइटी वो पूरा पूरा आपका इससे एक्सप्लेन हो जा रहा है, इन 6 आइटम से। लाइक सपोज अगर सेकंड में लोडिंग हो जाती, आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर्स और ऑल कंप्यूटर्स हेट मी। अगर सपोज ये दोनों लोड हो जाते सेकंड कंपोनेंट में, तो हमें पता करना पड़ता, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वेरिएंस आपस में शेयर कर रहे हैं, कॉमन वेरिएंस है इनमें। और वो हो सकता है कि अब टोटल जो हमारी वो है एसपीएसएस एंजाइटी, वो तो सपोज 6 कर ही रहे हैं, लेकिन ये 2 मिल करके टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल एंजाइटी भी शो कर रहे हैं। आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑल कंप्यूटर्स हेट मी, ये थोड़ा थोड़ा सा आप कह सकते हो ना कि ये टेक्निकल एंजाइटी का पार्ट हो सकता है। कैन यू से लाइक दिस और नॉट? या standard deviations excite me, or I dream that Pearson is attacking me with correlation coefficients। अगर ये कहीं आपस में एक फैक्टर में लोड होते, तो ये भी एक इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अपार्ट फ्रॉम ऑल द 6 एक्सप्लेनिंग एसपीएसएस एंजाइटी,
these two are also explaining anxiety towards statistics. Are you getting my point? Sir, that is anyway, it is coded in the reverse. Standard deviation excite me. So it should also be loading on the first factor. And it is etched in the negative sense. No, how it will load in on the first factor? First factor, how it Matlab, will load? sir, matlab standard deviation excite me, matlab it is opposite of anxiety. एक्साइट मी मतलब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो दिस एक्साइटमेंट इज समवॉट नेगेटिव टेकन एज नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एक्साइट मी Okay, मींस okay. दे क्रिएट अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट नॉट टू लर्न दैट थिंग मींस जो एक एक्साइटमेंट आप कह सकते हैं ना कि जस्ट इट लीड्स टू यू कैन से the moment you hear of the standard deviation you have a kind of means elevated state of mind एकदम आप अलर्ट हो जाते हो ठीक है Yes, sir. समझ गया So, सर. Yes, sir. एक्चुअली ये जब आप पूरा क्वेश्चनर देखोगे एंडी फील्ड ने बनाया है तो उसने इसी पर्पस से बनाया है कि लोगों के निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं स्पीसीज न सीखने के लिए Yes. आप देखो ना ऑल सारे स्टेटमेंट नेगेटिव ही हैं आई हैव नेवर बीन गुड एट मैथमेटिक्स ऑल कंप्यूटर्स हेट मी आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर्स आई डोंट अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स आई ड्रीम दैट पियर्सन इज अटैकिंग मी विद कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशंस एक्साइट मी माय फ्रेंड्स विल थिंक दैट आई एम स्टूपिड फॉर नॉट बीइंग एबल टू कोप विद एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स मेक मी क्राई ऑल दीज आर मींस द स्टेटमेंट्स व्हिच शोज people's reluctance or their anxiety towards SPSS, right? So, अगर कहीं कुछ ऐसा हमारा फैक्टर लोड होता आइटम जैसे सेकंड और थर्ड आपस में कहीं एक कॉमन वेरिएंस शेयर कर पाते क्योंकि हमें अपना जस्टिफिकेशन भी लगाना है तब तो हमें फर्दर जरूरत पड़ती पता करने की कि सेकंड कंपोनेंट क्या है लेकिन आपका देखिए कि मैक्सिमम आपके आउट ऑफ 8 6 आपके जो है एक ही डायमेंशन को या एक ही कॉन्स्ट्रक्ट को डिफाइन कर पा रहे हैं और आपस में एक कॉमन वेरिएंस भी शेयर कर रहे हैं अगर आप देखिए फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स मेक मी क्राई सेकंड इज माय फ्रेंड विल देन फोर्थ वन आई ड्रीम दैट पियर्सन इज अटैकिंग मी विद कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स देन आई डोंट अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स I have little experience of computers. All computers hate me. I have been never good at mathematics. अगर आप देखिए तो सब एक common variance आपस में share कर रहे हैं और finally they are leading to component one which is saying that about SPSS anxiety. So now you can say that SPSS anxiety is being explained by these 6 items which share a common variance and this common variance is able to explain the total variance. ठीक है? Yes, Am I sir. clear on this? Say yes or no and let me move forward. Yes. हो क्या रहा है बहुत सिंपल सी बात है सेकंड और थर्ड लोड हो रहे हैं सेकंड कंपोनेंट पर बट आपस में कोई कॉमन वेरिएंस तो शेयर कर नहीं पा रहे हैं एक डायरेक्शन में यू कैन नॉट मेक एनी सेंस अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं आप बना लें आप आइडेंटिफाई करें कि सेकंड कंपोनेंट क्या है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा बन नहीं रहा है ओके तो we have just and most of our means 51 point out of 51.5% of the variance explained 37% is explained by only these 6 means by your component 1 तो कोई जरूरत ही नहीं है पता करने की component 2 क्या है तो simply you can put it now coming to the common factor analysis or factor analysis EFA factor analysis आप उसको जो भी कहें This common factor analysis assumes that the total variance is explained by a common variance along with unique variance. Number one. Second thing, that there are some hidden variables
which add to the construct. Like if you are saying that SPSS anxiety could be explained by two components, then if you are taking an assumption that you can say that the common variance is also means not only explained by the common variance is also explained by some unobserved or latent variable, means it's normally the assumption of doing the common factor analysis is first that there is a common variance and also there is a unique variance, and also you have not measured your set of items perfectly, so there will be some set of items that will be treated that are unobserved, that have gone unobserved, you have missed to observe them, they are latent variable and they will make up the common variance, and they are called the factor. So this is now the factor analysis. So now I have given you a data set saq.sav, जहां पर पूरे के पूरे लगभग एनडी फील्ड के जो क्वेश्चन आया था पूरे 23 क्वेश्चंस थे। हमने उसमें से 8 लिए थे जो कि एक कॉमन वेरिएंस को शेयर कर रहे हैं, इसलिए वो 8 लेकर के हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किया था। नाउ वी आर सीइंग बिकॉज all these 23 items, they are not having the common variance, they are also having some unique variances, so I am taking these 23 questions. So can you please open that, and if you have SPSS please open in SPSS क्योंकि ज्यादा better उसमें I have done this in PSPP, but in PSPP it's again only just you are changing this here it is having only option to go to analyze, select factor analysis, or take the variable, and in extraction it is only having the principal axis factoring, that's it. तो बाकी वो जो बाकी चीजें हम डिफाइन करते हैं फॉर मोर क्लियरिटी, केमो बार्टलेट एंड ऑल वो सारे ऑप्शंस उसमें है नहीं. So if you can open it in SPSS, that would be great. Do you have that data set? Is my screen visible? Is this visible? Yes, sir. So we have this data set and number of responses, we are having more than 2000. Now we are going to do factor analysis, or you can say it is also known as principal axis factoring, PAF. So one extraction method, what? See, rotation method is different. It's either orthogonal or oblique. Extraction method is different, where you are just cutting down the numbers of your means you have the variables and you are now cutting down the number of variables, which makes sense. After rotating, you make just you do the rotation for making better interpretability. So one method we have seen in principal component analysis, because I have already told you that choosing the method is based on the variance partitioning, that which kind of variance you are having.
If common variance is only there, which is explaining the total variance, you will go for principal component analysis. If there is unique variances also, then you will go for principal axis factoring or this factor analysis. Now, the 8 questions that I have taken up initially, most of them were sharing a common variance, common characteristic, and that's why there was no unique variance in them, and that's why we have taken the method of principal component analysis. However, if I am taking all the 23 questions, you'll find that there are few items which are also having a unique variances. And when there is a means the total variance is explained by the unique variance and common variance, then you will go for principal axis factoring. So identifying within your items that whether they are having unique variance and the total variance or the common variance or not, that's where you have to. सर आई हैव वन डाउट सर, आपका जो भी क्वेश्चन रहा है वो तो लाइकर्ट स्केलिंग पे, बट मेजरमेंट ऑर्डिनल स्केल है। तो मैडम, मैंने कितने सेशन में कहा कि बड़ी बेसिक, अगर अपने बेसिक सेंस में हम देखें लिकर्ट को, तो ऑर्डिनल ही होती है वो। लिकर्ट स्केल इन इट्स बेसिक एसेंस इज ऑर्डिनल इन नेचर। बट सर ऑर्डिनल में तो हम लोग रैंकिंग मोस्टली लेते हैं ना। हाँ, तो रैंकिंग लेते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर तो हम इसको कट डाउन करने की बात कर रहे हैं ना, हम तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और इसकी फैक्टर एनालिसिस की बात कर रहे हैं। नहीं सर, वो तो ठीक है, बट हाँ। एक्चुअली ऑर्डिनल दिखा, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि मतलब हाँ, यहाँ पर लिकर्ट को हमने एज रैंकिंग स्केल ऑर्डिनल ही, हमने क्या ओनली 2 में बनाया था, तो उन्होंने इसको ऑर्डिनल ही लिया हुआ है। ओके सर। अच्छा, और लिकर्ट स्केल अपने बेसिक एसेंस में आज भी ये डिबेटेबल है कि लिकर्ट स्केल ऑर्डिनल होती है या लिकर्ट स्केल इंटरवल होती है। अगर आप कोई मेरा पुराना रिकॉर्डेड वीडियो देखिए तो मैंने बोला है कि बेसिक एसेंस में लिकर्ट स्केल चूंकि एक रैंकिंग स्केल है, इसलिए ये ऑर्डिनल होती है। जब आप लिकर्ट स्केल को या तो एक्सटेंड कर देते हैं, यानी उसके जो डिस्टेंसेस हैं 1 2 3 4 5 के बीच के डिस्टेंसेस को जब आप इक्वल कर देते हैं तो वो इंटरवल स्केल हो जाती है। या आप उनको कोई वेट असाइन कर देते हैं, जैसे अगर हम कहें कि 1 का मतलब 10 पॉइंट हो गया, 2 का मतलब 20 पॉइंट हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक वेट दे दिया, तो अब 1 का मतलब स्ट्रांगली एग्री नहीं है, 1 का मतलब स्ट्रांगली एग्री टू 10 पॉइंट्स है, ठीक है। 2 का मतलब एग्रीमेंट विथ 20 पॉइंट्स, मतलब उतना 10 का वेट ऐड होता चला जा रहा है, तब वो इंटरवल हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सिंपल रॉ फॉर्म में लेंगे लिकर्ट स्केल को तो वो ऑर्डिनल ही रहेगी। ओके सर। तो यहाँ पर ये ऑर्डिनल है। यहाँ हमें खैर और कोई स्टैटिस्टिक लगानी भी नहीं है, वी आर जस्ट कंसर्न ऑफ कटिंग डाउन देम, ओके, इनटू मींस we have to identify the latent factors and see whether how much the variance is explained in our case. So यहाँ पर हमारा ये actually मकसद है। Okay, so now in these 23 variables, they are having these 23 items, a few of them share a common variance, a few of them have the unique variance also. So this is the case, so we will be going for principal axis factoring or you can say the factor analysis or exploratory factor analysis. तो इसके पहले जिन जिन लोगों ने फैक्टर एनालिसिस किया है और बिना सोचे समझे सिर्फ नेक्स्ट 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 क्लिक करते गए हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एसपीएसएस या कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्शन मेथड को प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ही लेता है, और आपने सपोज 50 क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये केस तो कभी सही हो ही नहीं सकता कि आपके 50 क्वेश्चंस, वो भी जब आपने ऐसे खुद से बनाए हैं, वो सब कहीं ना कहीं कॉमन वेरिएंस ही खाली शेयर करते होंगे, यूनिक वेरिएंस भी आएंगे, लेटेंट वेरिएबल्स भी होंगे उसमें। ओके, सो प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग उस समय चूज करना चाहिए था। एनीवेज, अब आगे से इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेरिएंस का पार्टीशनिंग जानना बहुत जरूरी होता है। मैंने
प्रीवियस सेशन में इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं कि जैसे हम ये एनालाइज पर जाते हैं, सीधे हम डायमेंशन रिडक्शन पे क्लिक करते हैं, फैक्टर पे क्लिक करते हैं, हमने सारे ये ले लिए और उसके बाद हम ओके कर देते हैं। भैया ओके में जरा आप देखें कि क्या क्या चीजें हम ओके करते चले जा रहे हैं। एक्सट्रैक्शन मेथड बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, पर लाके आपके केस में सारे के सारे कॉमन वेरिएंस शेयर नहीं कर रहे हैं, टोटल वेरिएंस, कॉमन वेरिएंस और यूनिक वेरिएंसेस दोनों से एक्सप्लेन हो रहा है, और आपने ले लिया प्रिंसिपल कंपोनेंट। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस दोनों चीजें लगभग सेम है, उनका मकसद सेम है, बट मेथड अलग है और सिचुएशन अलग है। दे आर अप्लाइड इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, so they will get some, give you some different results also. Anyways, so before going for this factor analysis, just check the correlation if you want. Otherwise, while you will be doing this analysis, it will give you a correlation table, because correlation coefficient already it is taking in the options. I need not anything. Okay, ये कोरिलेशंस हैं आपस में इनके, और ओवरऑल हम देखें तो थोड़ा ठीक ही ठाक कोरिलेशन है, बहुत अगर बढ़िया भी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। लगभग बहुत सारे कोरिलेशंस 34%, 37% या 50% के आसपास आ रहा है, तो ठीक है, वी कैन कंटिन्यू, कहीं कहीं 0.587 वगैरह भी आया है, so we can continue with the correlation with this. Okay, so correlation tells you that whether you should go for, because correlation ही एकदम नहीं होगा, किसी भी आइटम का आपस में कोई correlation नहीं होगा, कहीं से भी कोई correlation नहीं, तो ऑफ कोर्स वो वेरिएंस शेयर कर ही नहीं रहे हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि वो वेरिएंस को नहीं शेयर करेंगे क्योंकि वो स्प्रेड हो ही नहीं रहे हैं कहीं पर। ओके, या बहुत हाई कोरिलेशन आ रहा है तो एक दूसरे के बहुत करीब है, अगर 1 के करीब आ जा रहा है कोरिलेशन, तो उस केस में भी आप मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक आपको ओवरऑल आइडिया दे देता है कोरिलेशन टेबल कि वेदर यू शुड गो फॉर डूइंग दिस डायमेंशन रिडक्शन और नॉट, क्योंकि हर केस में हम डायमेंशन रिडक्शन करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सपोज मेरे पास 50 क्वेश्चन है, मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन क्या मेजर कर रहे हैं, ओके, सो उस केस में मुझे करना चाहिए, बट पहले उसे कोरिलेशन टेबल देख लेनी चाहिए। So anyways, now the next step is to analyze this, go for factor extraction, और मैं एक ही स्टेप में फैक्टर एक्सट्रैक्शन और सारी चीजें यहाँ पे करूंगा। So you will go for dimension reduction, factor, you take all these variables, पहली चीज होती है descriptives, select univariate descriptives, initial solution, coefficients, significance level, determinant, KMO Bartlett, okay, inverse, reproduced, anti-match, select everything. So why we are taking all this coefficient option in the correlation matrix, it will produce the R matrix, the coefficient, the correlation coefficient, as well as the this significance level option that we are taking. It will produce a matrix indicating the significance value of each correlation. When we have taken this, select this determinant, then it will give the determinant of this matrix, and this option is vital for testing our multicollinearity or singularity. This determinant will tell you. So if the determinant of the R matrix should be greater than 0.05. If it is less than this value, then you have to look at the correlation matrix for variables that correlate very high. So determinant is also important.
Then KMO test will tell you about sample adequacy, Kaiser-Meyer-Olkin, and Bartlett test will tell you about the sphericity of your sample. Then when you will be taking this correlation matrix, you will take their inverse image, reproduced image, and anti-image also to select all. So basically, Sir, when KMO we, and Bartlett will give you the Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy. So, and this value of KMO should be more than 0.5, so as the sample to be considered as adequate for doing the factor analysis. Right? Any question till now? sir, when we say sphericity Bartlett test, what does it mean? See, it is about sampling adequacy, whether your sample is adequate to be considered for this factor analysis or not. Okay. Sir, yes, sir. Yes, sir. So, to be because see, I have various literature say that when you are making a questionnaire, your sample for a good fit, your sample and your items should be in the ratio of 5:1. मतलब अगर आपके पास एक आइटम आप ले रहे हो तो एटलीस्ट उसका अगर आपको फैक्टर एनालिसिस करना है तो मिनिमम 5 सैंपल्स आपके पास होने चाहिए. तो लाइक अगर मेरे क्वेश्चनर में 20 आइटम्स हैं तो मिनिमम 100 का सैंपल मुझे लेना पड़ेगा. मतलब ये एक रूल है, उसको स्टैटिस्टिकली हम देख लेते हैं कि केमो बार्टलेट टेस्ट से वो कितना फिट हो रहा है. अदरवाइज रूल सही है कि सपोज आपके पास 20 क्वेश्चन है तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना होना चाहिए उसकी सैंपल एडिक्वेसी के लिए? 20 है तो 100, 20 into 5. हाँ, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए. इससे ज्यादा है तो बेटर है, मिनिमम इतना तो होना चाहिए. तब तो आप ये वेरिएंस एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी आप जो है फैक्टर एनालिसिस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे. तो उसको देखने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि हम केएमओ टेस्ट लगा देते हैं. अब केएमओ टेस्ट जो है उसका स्टैटिस्टिक ये है कि 0.5 के ऊपर अगर होगा वैल्यू आएगी तो आपका सैंपल एडिक्वेट होगा, अदरवाइज सैंपल एडिक्वेट नहीं होगा. इंक्रीज करिए सैंपल साइज को. क्लियर? Yes, sir. Sir, और ये जो sample size adequacy, it can be done for anything, ना? Not only related to factor analysis. कहीं किसी भी sampling adequacy. हाँ, कहीं पर भी. जी सर. क्योंकि सैंपल एडिक्वेसी एक्चुअली आपको बताता है कि आप ओवरऑल एक्चुअली जब भी हम कुछ करते हैं तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, यही सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्टैटिस्टिक्स में. तो वेरिएंस करेक्ट एक्सप्लेन होने के लिए आपका सैंपल एक एडिक्वेट साइज में होना ही चाहिए. और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कैसर-मेयर-ओल्किन की तरफ से. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज केएमओ टेस्ट. राइट? यस सर. एक और है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, केएमओ टेस्ट भी और बार्टलेट टेस्ट भी, दोनों. ओनली देन वी कैन से सैंपल इज एडिक्वेट. हाँ, दोनों. जी सर. ओके. यस सर. थैंक यू. नाउ आफ्टर डिस्क्रिप्टिव्स आई एम गोइंग फॉर एक्सट्रैक्शन. सो यहां पर हम कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड लेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग मेथड. अच्छा, एक इस पे मैं कभी बाद में किसी सेशन में आऊंगा. एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड भी है जो बहुत यूज होता है, लेकिन इट इज मोर रिलेटेड टू रिग्रेशन. ओके. सो मतलब इसके जो आउटपुट होंगे वो लगभग रिग्रेशन के आउटपुट की तरह होते हैं. तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अभी प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग पर चलते हैं. उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे कोरिलेशन मैट्रिक्स. सिलेक्टेड ही है. रोटेटेड, अनरोटेटेड फैक्टर सॉल्यूशन means situation where means in this I am taking the results to be displayed when our solution is not rotated. Scree plot of course पहले की तरह जो हमने वहां किया था सेम यही, बस सिर्फ प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग लेंगे. Based on eigen values, I want eigen values to be greater than 1.
मैक्सिमम इटरेशंस फॉर कन्वर्जेंस 25 है, लेकिन थोड़ा इसको बढ़ा ही देते हैं क्योंकि कभी कभी कन्वर्जेंस के लिए ज़्यादा जरूरत होती है इटरेशंस की, तो दिक्कत होती है, तो इसको 100 कर देते हैं। कंटिन्यू। एक्सट्रैक्शन हो गया, एक्सट्रैक्शन तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप इज rotation. Rotation. For making your factors more interpretable. So this interpretability of factors could be increased through rotation. Now, rotation is of two types: orthogonal rotation and oblique rotation. So Varimax, Promax, Equamax, Cortimax, all these are the kind of orthogonal rotation. While direct oblique, in this orthogonal rotation, Varimax is the most commonly used, while in the oblique rotation, direct oblique is a type of oblique rotation, and it is used for mostly it is used for doing, it's one of the preferred test for doing the oblique rotation. सर बीच बीच में आपकी वॉइस बहुत स्लो हो जाती है। I don't know, it's through internet कैसे हो रहा है. So I am repeating again. Rotations are of two types. One is oblique rotation, another one is orthogonal rotation. This Varimax, Promax, Equamax, this Qualtimax, all these are kind of this orthogonal rotation, whereas Varimax is the most preferred kind of orthogonal rotation. Direct oblique is the kind of your oblique rotation, and it's most commonly used when you want to do the oblique rotation. Now, choice of rotation. Now a question might be coming in your mind that why we have so many methods of why we have oblique or orthogonal rotations. So this choice of taking the rotation, these different kind of rotations is mostly based on mathematical concepts, and also which kind of this image you want to create for your data set, whether you want to make a orthogonal kind of image. Okay, orthogonal means 8. If the entire data is just scattered, if you plot the data, you should get 8 cut points, you should get 8 points of the data, then you will go for orthogonal. If you want to have oblique structure, then you will go for the oblique rotation. No need to go into these complexities as of now. So we can discuss someday that why we take these. As of now, I am taking Varimax, which is the most preferred orthogonal rotation. Now, once I have selected the Varimax, the other things that I have to select is rotated solution, loading plots, maximum iterations for convergence. फिर से 100 ले लेता हूँ रोटेशन में भी. उसके बाद I want to generate the factor scores also. Now you have select save as variables. You have 3 methods of saving. Actually, what it will do, it will just save the
standardized factor score for each of the factors. Okay. So here, whether I have three options to choose, whether I want to choose a regression method for saving the factors, factor scores, I have Bartlett method, and I have Anderson or Rubin method. Now, again, there is some means you have to compare. Let's compare what is the difference between the two. So, if you will go for the regression method, it will produce the scores that have a mean of 0, and a variance. The variance score will be equal to squared multiple correlation between estimated and true factor scores. तो इससे होगा क्या? What will happen? This will maximize the correlation between these two scores, and hence it will also create convergent validity. But the scores can be somewhat biased. So what does it mean? In the orthogonal rotations like Varimax, you can still have correlated factor scores. If you want a high level of correlation, though there will be some problem of multicollinearity, then you go for means each factor score, if you want might be correlated with each other, then go for regression method. For Bartlett method, the factor scores highly correlate within its own factor. Okay. Again, it may create a problem of multicollinearity, but based on your choice, you can take. Anderson-Rubin method perfectly scales the factor scores. When you are choosing Anderson-Rubin method for saving the factor scores, then it creates a better score, and estimated factor score are uncorrelated with other factors and uncorrelated with other estimated factor scores also. So you can see that since Anderson-Rubin score impose a correlation of 0 between factor scores, it could be the best option to choose for orthogonal rotation. While if you will choose the oblique rotation, then this is one of the worst method. So keep in mind, when you are doing orthogonal rotation, select regression or Bartlett, not Anderson-Rubin. But if you are going for orthogonal, when you are going for oblique rotation, never choose Anderson-Rubin. But if you are going for orthogonal rotation, then the best method is Anderson-Rubin. You can choose any of the three, but Anderson-Rubin is the best one. But never use Anderson-Rubin for oblique rotations. If you are going for oblique rotation, select regression or Bartlett, but the best one is regression. But in orthogonal, always keep in mind, don't go into the basic what I have told कि कब हम करते हैं, किस लिए करते हैं, but दिमाग में एक चीज रखिए कि जब आप ऑर्थोगोनल रोटेशन करेंगे तो आप एंडरसन-रूबिन लेंगे, ऑब्लिक रोटेशन करेंगे तो आप रिग्रेशन या बार्टलेट में से कोई सा भी ले सकते हैं. नेवर टेक एंडरसन-रूबिन फॉर ऑब्लिक रोटेशंस. तो यहां पर हम ऑर्थोगोनल रोटेशन हमने लिया हुआ है, सो आई एम सेलेक्टिंग एंडरसन-रूबिन. ये चीजें हो गई. डिस्प्ले फैक्टर स्कोर्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स कंटिन्यू कर दिया था हमने. अब आते हैं हम ऑप्शंस पर. ऑप्शंस पर एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज रीजन है क्योंकि वी आर टेकिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट पेयर्स. कोफिशिएंट डिस्प्ले फॉर्मेट सॉर्टेड बाय साइज. सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट्स. सो स्मॉल कोफिशिएंट्स कितना हम लेना चाह रहे हैं? 0.4 0.5 कुछ भी ले लें. 0.10 तो नहीं लेंगे हम. So anything above 0.4 would be acceptable. Continue कर देते हैं. Further,
Continue. Okay. Let it calculate. It's still calculating due to large sample size. तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। जो दूसरी काम की हमारे टेबल है वो है हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स। Now in this correlation matrix, you have to see, just simply you just cross check and you take out, see any, if any variable is having a significance of 0.5 or more, 0.05, because until and unless anything is below 0.05, you can say that the correlations are significant, else they are not significant. So you can scan this correlation coefficient to find out the majority of values, and also if you find any values greater than 0.9, then this will indicate the problem of multicollinearity. Only one item could have, with itself it can have correlation of 1, वहां तक ठीक है, बाकी किसी के साथ उसकी वैल्यू 0.9 के अबव नहीं होनी चाहिए इस कोरिलेशन मैट्रिक्स में, 0.9 के आसपास भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। ओवरऑल हम देखें तो ऐसी कहीं पर प्रॉब्लम है नहीं, जस्ट ये दिस इज जस्ट फॉर मींस अ क्विक चेक, और ऑलमोस्ट सारे कोरिलेशंस भी सिग्निफिकेंट हैं, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो कोरिलेशंस आपके सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी भी क्वेश्चन या आइटम को यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, 23 क्वेश्चन हमारे थे, किसी को भी डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। नाउ second table is KMO and Bartlett. So KMO and Bartlett की वैल्यू क्या हमें मिल रही है? 0.93 किसकी? KMO KMO की वैल्यू मिल रही है, तो 0.5 के अबव हमने पहले ही बोला था कि है, तो ठीक है, ओके। तो इसमें सर p वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है ना सर? हाँ, इवन इफ सिग्निफिकेंट, वो जो वैल्यू आएगी वो अगर इनसिग्निफिकेंट है तो चाहे कुछ भी हो उसका कोई मतलब नहीं है। यस सर, तो वो सिग्निफिकेंस तो हरदम ही रहेगा। सो दिस KMO value, this ranges from 0 to 1. So a value of 0 indicates that the sum of the partial correlations is large relative to the sum of correlations. इसका बेसिक मतलब ये है, बट इसका मतलब फाइनली ये होता है कि द डिफ्यूजन इन द पैटर्न ऑफ कोरिलेशन एंड फैक्टर एनालिसिस इज इनएप्रोप्रिएट। ओके, वैल्यू 1 के जितना ही क्लोज होगी वो इंडिकेशन होगा कि पैटर्न ऑफ कोरिलेशंस आर रिलेटिवली कंपैक्ट, जो कोरिलेशन के पैटर्न हो कंपैक्ट है, एंड सो फैक्ट अगर वो कंपैक्ट है तो क्या होगा, फैक्टर एनालिसिस अगर आप करेंगे तो वो आपको बेटर फैक्टर्स, रिलायबल फैक्टर्स, बेटर रिजल्ट्स देगी। So anything above 0.5 is acceptable. Between 0.5 and 0.7 means 0.5 is just acceptable. 0.5 से 0.7 के बीच है तो मीडियोकर वैल्यूज हैं, 0.7 और 0.8 के बीच हैं तो गुड है, 0.8 और 9 के बीच होती हैं तो दे आर द ग्रेट वैल्यूज, सुपर वैल्यूज। तो हमारे केस में क्या है, KMO की वैल्यू
0.93 सुपर। सुपर सिग्निफिकेंट भी है, मीन्स जो भी हम अभी फैक्टर जनरेट करेंगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे। नाउ बार्टलेट्स टेस्ट मेजर अ नल हाइपोथेसिस। बार्टलेट टेस्ट के पीछे क्या है, जो एक नल हाइपोथेसिस ऑलरेडी सिस्टम लेके चलता है कि ओरिजिनल कोरिलेशन मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, and for factor analysis to work we need some relationship between the variables. Okay, so we want this test to be significant. अगर ये टेस्ट सिग्निफिकेंट होगा, ओके, यानी इसकी वैल्यू अगर 0.05 से सिग्निफिकेंस वैल्यू, क्योंकि ये जो आप कह रहे थे ना सिग्निफिकेंट, ये बार्टलेट की सिग्निफिकेंस है। बार्टलेट की वैल्यू आप देखिए, ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करता है। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक भी एक तरीके का, जब हम कैटेगोरिकल कोरिलेशन करते हैं तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक ही होती है, क्रॉस टैबुलेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना है, सिग्निफिकेंस 0.000, यानी अगर आपका बार्टलेट टेस्ट सिग्निफिकेंस है तो ये शो करेगा कि वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशंस हैं। ये स्पेसिफिसिटी का मतलब ही यहाँ पर ये होता है, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज एस्टैब्लिश्ड। हाँ हाँ, वो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन होना चाहिए। जी सर। ठीक है। फर्दर हमने फैक्टर एक्सट्रैक्शन किया था। ये एंटी इमेज मैट्रिसेस वो सब हमने सब बता दिया आपको, बट मेन तो चीजें हमारा कम्युनैलिटीज का कॉन्सेप्ट हमने कल बताया ही था। इनिशियल और एक्सट्रैक्शन में आप देख लीजिए कुछ फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। जब आप इन सब का सम करेंगे तो ये आइगन वैल्यू के बराबर हो जाएगी कम्युनैलिटीज। अब हम देखते हैं यहां पर इस टेबल को। दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल बिकॉज इट कंटेन्स द आउटपुट फ्रॉम फैक्टर एक्सट्रैक्शन। Now, if you see before extraction, our software SPSS has identified 23 linear components within the data set. The eigenvalues associated with each factor represent the variance explained by that particular component, and SPSS also displays the eigenvalue in terms of percentage of the variance explained. तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले के केस में कितनी आई थी, 7.290, 31.696, 1.739, और ये कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, 7.560%, 1.317, एनीथिंग अबव 1 हमने पहले ही बताया था आइगन वैल्यू इज कंसीडर्ड अ गुड फिट, 1.227, 5.336 लाइक दैट। इसी तरीके से सब मिलके 100% वेरिएंस एक्सप्लेन करेंगे। ये चार मिलके जरा हम देखते हैं कि कितना कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 50%, क्योंकि इसके नीचे सब फिर 1 के नीचे चले गए हैं। तो अभी हम स्क्रिप्ट प्लॉट देखेंगे तो वहां से भी हमें आइडिया लगेगा कि हमें कितने फैक्टर्स लेने हैं। और यहां अगर आप देखें कि फर्स्ट फ्यू फैक्टर्स, सिर्फ ये 4 फैक्टर मिलकर के कितना वेरिएंस पूरा एक्सप्लेन कर डाल रहे हैं। हमारे पास 23 फैक्टर्स हैं, 23 फैक्टर में से शुरू के 4 कितना कर दे रहे हैं, 50%। ठीक है। अब अगर हम क्योंकि और इनकी आइगन वैल्यूज भी 1 के अबव है, सो फाइनली इससे निकलेगा तो है कि हमें 4 फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, 4 कंपोनेंट्स या फैक्टर्स, सॉरी यहाँ फैक्टर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर 4 फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं हमको। ये प्रोसेस ही हो रहा है। हाँ, स्क्रिप्ट प्लॉट। अब अगर स्क्रिप्ट प्लॉट को आप देखेंगे तो स्क्रिप्ट प्लॉट क्या दिखा रहा है कि सेकंड के बाद आपका अगेन एल्बो बन रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है, मतलब अचानक से बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं। सेकंड के बाद देखिए ना, सब सारी वैल्यूज गिरना शुरू हो गई। यस सर। लेकिन अगर आप थोड़ा और क्लोजली देखेंगे
तो कुछ और आपको पता लग रहा है कुछ और क्लोजली देखने से? सर वो ज्यादा स्टीप है और ये कम स्टीप है उसके बाद। कुछ और जो आप बता सकते हो? सर फोर्थ पॉइंट पे थोड़ा सा बढ़ा है, थर्ड के बाद। फोर्थ पॉइंट पे थोड़ा बढ़ा है, ओके, और कुछ? और सर फिर ग्राफ बिल्कुल फ्लैट, लास्ट में आके फ्लैट होता जा रहा है, बट आप लाइक वी वो वोंट बी आप फोर्थ के कंसीडरिंग। बाद देखें तो अचानक से फ्लैट भी होना शुरू हो गया। हाँ, फ्लैट होना सेकंड के शुरू, बाद गिर गया और फोर्थ के बाद फ्लैट होना फ्लैट हो शुरू। गया है। तो ये आपको दो चीजें बता रहा है। वो ये बता रहा है कि या तो आप दो ले सकते हैं फैक्टर्स, या चार भी ले सकते हैं। भाई अगर आप ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट ले लीजिए तो आप दो ही लीजिए, और अगर आप ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट ले लें क्योंकि इसके बाद फिर सब ठीक ठाक अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो आप चार भी ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दो और चार में से हमें डिसाइड करना है। ओके। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि कैसर नॉर्मलाइजेशन का एक रूल है, थंब रूल, कि अगर आपका बहुत लार्ज सैंपल साइज हो तो मिनिमम फोर फैक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने ही करने हैं। तो कुछ हमारा भी डेटा सेट ऐसा बन रहा है कि दो और चार दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं, तो हम सेफर साइड किस ऑप्शन के लिए जाएंगे? फोर। 4। फोर। दो भी ले सकते हैं, वो उसमें गलती नहीं है, जस्टिफाई कर सकते हैं कि सेकंड के बाद इन्फ्लक्स बहुत तेजी से हुआ, हम दो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे चार जो है वन के ऊपर आइगन वैल्यूज एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। उसके बाद जो है अगर इसको भी आप देखें तो चार के बाद अचानक से फिर चीजें जो है एक मतलब अरेंजमेंट, एक अलाइंड डिक्लाइन। अलाइंड अरेंजमेंट है, तो चार भी हमारे पास ऑप्शन है कैसर नॉर्मलाइजेशन रूल के हिसाब से। कैसर नॉर्मलाइजेशन रूल ये कहता है कि मतलब अगर आपका लार्ज सैंपल साइज है 250 300 के ऊपर है, तो एटलीस्ट फोर फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करिए आप। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात ही नहीं, और हमारे ये फोर फैक्टर्स पूरा 50% वेरिएंस भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कंपोनेंट मैट्रिक्स हमारे पास कहीं आना चाहिए, या फैक्टर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ हमने कंपोनेंट एनालिसिस तो किया नहीं है, तो हम तो फैक्टर एनालिसिस ही करेंगे। अब आप देखते जाइए, पॉइंट फोर के नीचे कोई भी होगा उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, क्योंकि हमने पॉइंट फोर वहां सेट किया हुआ था। कौन कौन सा किस किस में लोड हो रहा है आप बताएं जरा। पॉइंट 4 के नीचे सर कोई नहीं है। ठीक है, तो सभी लोड हो रहे हैं, सारे के सारे 23 लोड हो रहे हैं ना, बट कौन कहां पर लोड हो रहा है बताइए। भाई सभी हो रहे हैं। सभी हो रहे हैं। सॉरी सर, आई वाज जस्ट सॉरी। चलिए, छोड़िए उसको। ये सिचुएशन बेटर है या ये सिचुएशन बेटर है? देखिए,
ये तो एक्सट्रैक्शन जब हमने किया तो फैक्टर मैट्रिक्स आया, जब रोटेट कर दिया वेरिमैक्स रोटेशन को यूज करके, हमने कहा ना रोटेशन जो है आपको बेटर इंटरप्रिटेबिलिटी देता है, अगर नहीं दे रहा है तो वो रोटेशन आपने गलत किया हुआ है या कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो आप देखिए जो हमारा एक्चुअली जब हमने फैक्टर एक्सट्रैक्ट किया था तब जो मैट्रिक्स आया है, जो लोडिंग आई है, ये ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है? सर आफ्टर रोटेशन, रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स, तो हम इसको लेंगे क्योंकि इसमें वैल्यूज मतलब रेंज सब ज्यादा सब सब में कुछ ना कुछ जा करके कन्वर्जेंस हो रहा है। हम्म, वहां पर क्या था, फोर्थ में तो कुछ लोड ही नहीं हो रहा था। आप यहां देखें ना, फोर्थ फैक्टर पे तो कुछ कोई लोडिंग आई ही नहीं थी, खाली है फोर्थ फैक्टर। थर्ड पर भी एक लोडिंग है, सेकंड पर भी एक लोडिंग है, सॉरी 2 लोडिंग है। जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो आप देखिए लोडिंग थोड़ा सा इंप्रूव हुई, अगर ये नहीं इंप्रूव होती तो फिर कोई मतलब ही नहीं था इसका, लेकिन इंप्रूव हो रही है तो हम इस वैल्यू को लेंगे। अभी हमें क्या बता रही हैं, थोड़ा सा आप लोग हमें बताएं, आप इससे थोड़ा इंटरप्रेट करें। सर इसमें फोर्थ फैक्टर में तीन आइटम्स लोड हो रहे हैं, थर्ड फैक्टर में चलिए 3 आइटम्स लोड हो रहे हैं। वन बाय वन यहाँ लिखते जाते हैं। चलिए फैक्टर 1 क्या क्या लोड हो रहा है? पहला आइटम, 8 आइटम्स लोड हो रहे हैं। आइटम वाइज लिखते जाते हैं ना। दूसरा आइटम, सॉरी पहला सेकंड, थर्ड, आइटम नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमें देखना पड़ेगा कौन सा है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट्स है ना, ये कौन सा स्टेटमेंट है ये देखना पड़ेगा। यस सर, इसमें सर वो सीरियल नंबर मेंशन नहीं है। हाँ वो नहीं है, वो आइटम्स देखने पड़ेंगे। तो हम देखते जाते हैं, ये हमें अपनी स्पीसीज टेबल से देखनी पड़ेगी। ये कौन सा है? आई वेक अप अंडर माई डुएट, या ऐसे ये 21 है सर, सॉरी 21 21 क्वेश्चन नंबर 21। एनीबॉडी प्लीज हेल्प मी विद कौन सा, कहाँ कौन सा क्वेश्चन है? देन सेकंड वाला, सेकंड वाला सर वो आई वीप ओपनली, सिंपल देख लीजिए, एनीबॉडी कैन ट्राई। आई वीप ओपनली 16। उसके बाद आई ड्रीम दैट पियर्सन इज अटैकिंग मी, ये थर्ड या फोर्थ होना चाहिए। 4, आई ड्रीम दैट पियर्सन फोर्थ। और नेक्स्ट वन 12th का है शायद सर, पीपल ट्राई टू टेल यू। ओके अच्छा, अभी ऐसा करते हैं, मतलब ऐसे आप लिख लेंगे। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि फैक्टर 1 में जो आइटम्स आ रहे हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जरा देख लेते हैं इसको। फैक्टर 1 में जो आइटम आ रहा है क्या इंडिकेट कर रहा है? आई वेक अप अंडर माई डुएट, आई वीप ओपनली एट द मेंशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आई ड्रीम दैट पियर्सन इज अटैकिंग मी विद कोरिलेशन कोएफिशिएंट, people try to tell you that species make statistics easier to understand but it doesn't, standard deviations excite me। इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन एकदम उल्टा है, जो आप पॉइंट आउट कर रहे थे एकदम उल्टा क्वेश्चन और नेगेटिव वैल्यू में आ गया है, ड्रॉप कर दीजिए इसको, ठीक है सर। इसको लेने की जरूरत नहीं। स्टैटिस्टिक्स मेक मी क्राई, आई कांट स्लीप फॉर थॉट्स ऑफ आइगन वेक्टर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स। ये सारे क्वेश्चन किस चीज को मेजर कर रहे हैं? फियर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फियर ऑफ हाँ SPSS या स्टैटिस्टिक्स। SPSS का नहीं है, फियर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया, फियर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आते हैं फैक्टर 2। I have little experience of computers. SPSS always crashes when I try to use it. Then third one is, I worry that I will cause irreparable damage because of my incompetence with computers. All computers hate me. Computers have mind of their own and deliberately go wrong when I use them.
ये क्या शो कर रहा है? Lack of knowledge or experience of using computers. Yeah, सिंपली कर दें, फियर ऑफ कंप्यूटर्स। fear of computers. Fear of learning. इसी तरह की कॉल लैंग्वेज यूज करेंगे तो बेटर होगा। फियर ऑफ कंप्यूटर्स शो कर रहा है या नहीं? Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. फैक्टर 2। अच्छा, फैक्टर 3, I have never been good at mathematics. I did badly at mathematics at school. I slip into coma whenever I see an equation. क्या शो कर रहा है? ये फैक्टर fear of mathematics. फैक्टर 3, फियर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आते हैं फैक्टर 4। क्योंकि आपको फैक्टर को इंटरप्रेट करना भी पड़ेगा। बहुत सारा लोगों ने मतलब लिख देते हैं, लेकिन वो अगर कोई फैक्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं इंडिकेट कर रहा है, उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। यहां पर क्या है? माई फ्रेंड्स आर बेटर एट स्टैटिस्टिक्स देन मी। माई फ्रेंड्स विल थिंक आई एम स्टूपिड फॉर नॉट बीइंग एबल टू कोप विद एसपीएसएस। और माई फ्रेंड्स आर बेटर एट एसपीएसएस देन आई एम। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? Peer pressure. पीयर प्रेशर। तो इसको भी अगर हम फियर टर्म में यूज करें तो फियर ऑफ निगेटिव पीयर इवैल्यूएशन। डर है कि मेरे फ्रेंड्स कलीग्स मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा इवैल्यूएशन रॉन्ग करेंगे। ठीक है? Okay, sir. अच्छा, अब इसको इंटरप्रेट करिए सारी चीजों को। अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा एससीक्यू क्वेश्चनायर था, इसने हमें 4, यानी हमारा क्वेश्चनायर कितने कॉन्स्ट्रक्ट्स पर बेस्ड है? Four constructs. वो 4 कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं फियर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले लेटेंट थे। अब याद रखिए क्या काम होता है फैक्टर एनालिसिस का। लेटेंट वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को सामने लाना कि लेटेंट वेरिएबल्स कैसे पूरे कॉन्स्ट्रक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। बोला था मैंने कि नहीं? Yes, sir. तो पहले तो ये सारी चीजें नहीं थी, हमारे पास एक ही कॉन्स्ट्रक्ट था, एक ही फैक्टर था, एक कॉन्स्ट्रक्ट हम लेके चल रहे थे। वो क्या था? एसपीएसएस एंजाइटी। ये सब लेटेंट थे। नाउ आफ्टर फैक्टर एनालिसिस ये सब आ गए बाहर। यानी अब रिलेशनशिप कैसे बनेगी? टोटल रिलेशनशिप कैसे बन गई आपकी? अगर अब हमें रिलेशनशिप बनानी हो, क्योंकि टोटल वेरी नाउ योर टोटल वेरिएंस इज एक्सप्लेन्ड बाय कॉमन वेरिएंस प्लस यूनिक वेरिएंस। यूनिक हमारे ये 4 हो जाएंगे बेटा। ये यूनिक ये 4 हो जाएंगे। अच्छा, और कॉमन वेरिएंस सर एसपीएसएस एंजाइटी। एसपीएसएस एंजाइटी तो कॉन्स्ट्रक्ट है। चलिए मैं बनाता हूं, डोंट वरी। एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं, ये होना चाहिए किस तरीके से वो मैं अभी आपको बताता हूं। अब इसके बाद हम कहीं यहाँ पे लिख देते हैं अपना
लीजिए, इसको मान लीजिए 23 थे पूरे 23rd, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं बनाने का। ये था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते हैं सॉरी जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस, ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। ये अगर हमें बनाना होगा तो बेसिकली जिस तरीके से वो आइटम्स वहां पर हैं हम वैसे ही अरेंज कर लेंगे आइटम्स को, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. दिस इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस। So this will be the kind of relationship. Are you getting this? Everybody? Yes, sir. So, Yes, sir. ये तो आपका हो गया मेन कंस्ट्रक्ट, ये हो गए आपके सब फैक्टर्स। इनके और इनके बीच जो रिलेशन होगा ये होगा ये जो आपस में शेयर करेंगे ये तो हो जाएगा कॉमन वेरिएंस, ओके। और ये जो आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि एक फैक्टर के कुछ यूनिक वेरिएंसेस भी हैं, 4-5 आइटम्स हैं वो उसको डिफाइन कर रहे हैं, फर्दर इस फैक्टर को और भी आइटम्स डिफाइन कर पा रहे हैं, तो क्या होगा यूनिक वेरिएंस। सो दिस रिलेशनशिप इज अबाउट यूनिक वेरिएंस, दिस रिलेशनशिप इज अबाउट बिटवीन ऑल द फैक्टर्स, दिस इज अबाउट कॉमन वेरिएंस। सो यूनिक वेरिएंस प्लस कॉमन वेरिएंस इज इक्वल टू टोटल वेरिएंस एसपीएसएस एंजाइटी। क्लियर है? कोई एग्जाम Yes, कोई sir. कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. बट एक मेजर चीज है, ये जो हमारा एसएक्यू क्वेश्चन है, एसपीएसएस एंजाइटी क्वेश्चन है,
it failed to measure SPSS anxiety. How it failed to measure? हमारा जो पहला फैक्टर है वो आना चाहिए था SPSS एंजाइटी को लेकर के। कहीं से किसी भी चीज ने SPSS एंजाइटी को मेजर किया डायरेक्टली? डायरेक्ट मेजरमेंट कहीं हुआ SPSS एंजाइटी का? क्या कहीं पर भी SPSS एंजाइटी को डायरेक्टली मेजर कर पाए हम लोग? अगर करते तो नॉर्मली कॉन्स्ट्रक्ट 1 में वो चीजें कन्वर्ज होती जो SPSS एंजाइटी को डायरेक्टली मेजर कर रही हैं। नहीं कर पाए हम। 4 सब कॉन्स्ट्रक्ट बने हमारे। 4 सब कॉन्स्ट्रक्ट को, वो 4 सब कॉन्स्ट्रक्ट मिल करके SPSS एंजाइटी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ना कि ये आइटम्स। ये आइटम्स SPSS एंजाइटी को, एक सिंगल आइटम SPSS एंजाइटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज ये जो हमारा फैक्टर 1 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस वो होते जो SPSS एंजाइटी को डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी लोडिंग हो नहीं पाई। SPSS एंजाइटी को लेकर के देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बता रहा हूं। Sir, SPSS always crashes me when I try to use it. एक तो ये हो गया, ठीक है। और एक और भी है। Everybody looks at me when I use SPSS. Then people try to tell you that statistics make that SPSS make statistics easier to understand, but it doesn't. लेकिन इनमें से सिर्फ एक इसको छोड़ करके बाकी सब तो, ये दो तो कहीं लोड ही नहीं हुए, या यहाँ पर ये जो है माय फ्रेंड योर पीयर, ये तो लोड ही नहीं हुए। तो यानी डायरेक्टली कहीं पर भी हम SPSS एंजाइटी को इस क्वेश्चनर से मेजर नहीं कर पा रहे हैं। फाइनली हम 4 कंस्ट्रक्ट, सब कंस्ट्रक्ट हमें मिल रहे हैं जो कि मेन कंस्ट्रक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। इसका टोटल इंटरप्रिटेशन यही है। सो अब आप अपने क्वेश्चनर को रिफ्रेम कर देंगे। आपका एक सब कॉन्स्ट्रक्ट होगा फियर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके अंडर ये 8 क्वेश्चंस आएंगे। फियर ऑफ कंप्यूटर्स, उसके अंडर ये 5 क्वेश्चंस आएंगे। फियर ऑफ मैथमेटिक्स, उसके अंडर ये 3 क्वेश्चंस आएंगे। और फियर ऑफ निगेटिव पीयर इवैल्यूएशन, उसके अंडर ये 3 क्वेश्चंस आएंगे। आपके क्वेश्चनर का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, और तब आप कहेंगे कि नहीं, मेरा क्वेश्चनर पूरी तरीके से वैलिडेट हो गया है। ठीक है, और आई हैव आइडेंटिफाइड माय कंस्ट्रक्ट्स, नाउ माय क्वेश्चनर इज वैलिड। आई हैव आइडेंटिफाइड द फैक्टर्स। तो नॉर्मली जब मेरे पास वो 23 क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्या मेजर कर रहे हैं, तब मैंने फैक्टर एनालिसिस लगाया। अब फैक्टर एनालिसिस के भी, एक्सप्लोरेशन के भी 2 तरीके हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट और दिस कॉमन फैक्टर एनालिसिस। When I am having an assumption that there is no unique variation, only the total variance is defined by the common variance among the variables, then I'll go for principal component analysis. When I have assumption that, और वो assumption चेक करते हैं ना प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में। कल अगर हमारा रिजल्ट खराब हो गया होता तो फिर हम फैक्टर एनालिसिस कर लेते, वो ये EFA कर लेते, यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस या कॉमन फैक्टर एनालिसिस। बट वहां हमारा सही आया था, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन हो गया कॉमन वेरिएंस से। अगर हम ये assumption लेके चल रहे हैं कि टोटल वेरिएंस जो है वो कॉमन और यूनिक दोनों वेरिएंस से, अकेले कॉमन वेरिएंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो हम करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग और प्रिंसिपल और फैक्टर एनालिसिस, और यू कैन से एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस आल्सो। और अगर वो सारे रिजल्ट सही आते हैं जैसे हमारे केस में आते गए, तो our assumption stands true that the total variance is explained by common variance and unique variance. So the common variance I got in the form of these you can say subconstructs, and unique variances were exhibited by these items. If you draw the overall relationship, you will find this kind of relationship
And yes, it stands true that the method we have applied, that's correct. Okay. So you'll get almost same result whether you apply the PC or whether you apply this uh, factor analysis. But if the situation is that there is no unique variance, then you will might end up in wrong results. If there is no unique variance, then no point in doing factor analysis. Go for principal component analysis. So hope this concept is now clear to you people. Is it now clear?